Let's move on to another topic, which is eutrophication. Eutrophication. This is another topic. BOD has been finished. POD is finished. Okay. Eutrophication. So, what is eutrophication? Actually, we are studying water pollution, and the water pollution BOD is finished. And after BOD, the second topic is eutrophication. Okay. So ये टर्म जो है बहुत ऊपर है, मतलब हाई फाई लग रहा है, बट इट इज़ नॉट अ हाई फाई थिंग. ठीक है, बहुत बेसिक सा चीज़ है, बोर्ड्स में आता है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा. एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या है, देयर इज़ अ लैंड स्लैंटेड एरिया. ओके, एंड इन द स्लैंटेड एरिया द फार्मर हैज़ प्लांटेड सेवरल प्लांट्स. ठीक है, several plants, several grasses, herbs, shrubs has been planted by the farmer in a slanted areas. So this is our crops. So what will happen? The next two crops, there is the area which is known as, there is a area, ठीक है, for the collection of water. एंड इन जनरल जो क्रॉप्स होते हैं ना, उन क्रॉप्स के आसपास पानी का एरिया होता है, ताकि प्रॉपर हम लोग उसमें से पाइप से कहीं पे भी पानी डाल सकें. तो सपोज दिस इज द वाटर एरिया, नियर बाई वाटर, अ रिवर मे बी देयर. ठीक है, बिकॉज इरीगेशन फैसिलिटी हैज बिन ऑन ऑल द फार्मर लैंड. So suppose this is a crop, this slanted crop, this is slanted area in which crops has been planted, and what the farmer is doing, farmer is applying the fertilizers on the crops, and that fertilizers will contain minerals like nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur. These kind of minerals has been there in the fertilizers, and that fertilizer is beneficial for the crops, and we have seen already that these fertilizers, they will cause global warming. This is a matter of fact that they also enhance the production or the productivity, right? So what will happen? The crop land, near to the crop land a water source is present, for example, and all the water, all the whenever there is a rainfall, or whenever the farmer is applying water into his or her land, all the materials, all the inorganic minerals, all the minerals of the fertilizers, they tend to come into this water area. Are you understanding my point? Whenever the farmer is applying any source of water, in fact rainfall can itself cause the washing of the urea or the minerals or the fertilizers, and these minerals will ultimately reach to the water area. Okay, nearby water area. Again, another thing can also happen. For example, suppose this is an industry, and in the industry we have seen that industries will release their dirty or polluted water, hot waters. Okay, and that water is also contaminating the nearby water bodies like river. Suppose this is a river, ultimately all the water is going into river. Okay, so this polluted water is again going into this river, and this polluted water contain heavy material like mercury, cadmium, etc, etc. Now another thing is, suppose this is a local person here, and that local person is washing his clothes or any other thing. Because of the human activities, detergents contain sodium, potassium. They are high rich in nutrients. They also reach the water body or the river. Okay, so ultimately who will be the most happiest person? This one. Most happiest person. Why? Because he is getting all the nutrients. And also, देखो हुआ क्या ना, कि ये जो minerals थे, that why this microbe is the happiest person, because all the minerals that is coming into the water body, that lead to the overgrowth or the enhancement of the growth in the plants that is present in the water ecosystem. Because we know that plant needs nutrients or inorganic mineral for its growth. Okay, so water will grow, in the water the plants will grow, and what will happen? The plants ultimately need oxygen also, na? Yeah, I agree, they will release oxygen,
but they also need oxygen, right? And whenever the plant is dying, the microbes will be the happiest person. Ultimately, due to the application or due to the encroachment of the fertilizer in the nearby water bodies, there is enhanced production of the plants or the algae, and that serve as a food for the microbes. The dead plants or the alga will serve as a food for the microbes, and the microbes will be like, oh हो मज़ा आ गया, क्या खाना आया है. तो माइक्रोब्स अल्टीमेटली क्या करेगा, फिनिश कर देगा. माइक्रोब्स धीरे धीरे क्या करेगा, पानी को, ऑक्सीजन को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा. तो धीरे धीरे जितना भी मेरा प्लांट है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, प्लांट मर जाएगा. एंड धीरे धीरे क्या होगा, एशेज विल सेडिमेंट इनटू द वाटर बॉडीज एंड द वाटर बॉडी विल गेट नैरोड. ठीक है, शैलो वाटर बॉडी विल बी देयर. रिवर सूख जाएगी, नदी सूख जाएगी, नदी गायब हो जाएगी सूख के. ठीक है, समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमस. ओके, सो हुआ क्या, एज अ रिजल्ट देर इज अ मतलब बिकॉज ऑफ द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट देर इज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ alga that is happening, and algal bloom will also be present in this water bodies, and various phosphate or nitrates are reaching the water bodies. They also enhance, they also help in algal bloom formation. So daily thousands of algae will grow and thousands of algae will be vanished or they will die. So dead algae will serve as a organic matter for the microbes, and as a result, overall over the increased period of time, BOD will increase and DO will decrease. Is it all clear? And because of DO, fishes will also die, and again there will be severe loss of oxygen, dissolved oxygen. So DO will subsequently fall, and over a period of time this lake will get shallowed. So there will is known, this is known as aging. Aging मतलब बूढ़ा हो जाना, क्योंकि ओवर द टाइम क्या होता है, लेक में सेडिमेंटेशन होता है, रिवर में सेडिमेंटेशन होता है, रिवर खत्म हो जाती है, सूख जाती है. बट ये नॉर्मली कितना टाइम लेती है, ये हज़ारों साल लगता है इस लेक को ख़त्म होने के लिए. लेकिन ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज और ड्यू टू द इंडल्जमेंट और द introduction of human activities, also to the interference of human activities, aging of lake will be enhanced, and ये 10 से 5 साल में ही पूरा का पूरा लेक, पूरा का पूरा रिवर क्या हो जाएगा, सूख जाएगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन क्या होता है, लेक का नैरोइंग या पानी का कम होना होता है. समझ में आया? बिकॉज ऑफ इनहांस्ड एजिंग ऑफ लेक, शैलोइंग ऑफ लेक हो जाएगा, और फाइनली द लेक विल डाई. ठीक है, बांस मारेगा ये पानी पूरा. तो दिस इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन में एक चीज एनसीईआरटी लिख के रखा है, जब यूट्रोफिकेशन हो रहा होता है इसको हम लोग एक्सेलरेटेड बाय मैन मेड, एक्सेलरेटेड बाय मैन. ठीक है, एंड इससे क्या होता है, तुम्हारा यूट्रोफिकेशन से पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज मेटाबॉलिज्म. ठीक है, पानी छोटा हो जाएगा और पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा बिकॉज मेटाबॉलिज्म हो रहा है. दिस इज यूट्रोफिकेशन. द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज बायोमैग्निफिकेशन. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल finish the pollution chapter. Okay, so biomagnification, this is the last topic, biomagnification. अच्छा, eutrophication is a natural process which is enhanced by human. Okay, eutrophication ऐसे भी हो रहा होता है. What is biomagnification? देखो हो रहा क्या है ना, biomagnification में स्टूडेंट बताता हूँ. ये मैंने क्या बना दी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बना दी. ये इंडस्ट्रीज क्या करती है, अपने सराउंडिंग वाटर बॉडीज में क्या करती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिलीज कर देती है. ये इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ना, इनके अंदर में टॉक्सिक केमिकल्स होता है. ये टॉक्सिक केमिकल्स लाइक व्हाट, मर्करी, कैडमियम, आर्सेनिक, लेड, ये जो टॉक्सिक केमिकल्स होता है ये किस में चला जाता है, पानी में चला जाता है. ऑल्सो हम लोग मच्छर को मारने के लिए पानी में क्या दे देते हैं, DDT देते हैं. ठीक है, DDT देते हैं, BHC देते हैं, BHC मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड. ठीक है, फिर हम लोग और भी केमिकल दे सकते हैं, PCB दे सकते हैं. तो ये जो केमिकल्स होते हैं ना, ये नॉर्मली क्या होता है, केमिकल्स कौन खा लेता है, फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन इन केमिकल को खा लेता है. फाइटोप्लैंक्टन कौन खा लेता है, मछली खा लेता है, फिश. ठीक है, तो मछली के अंदर में ये केमिकल चला जाता है, लेकिन ये केमिकल मछली को डैमेज नहीं करता बिकॉज ये जो केमिकल होता है ये लाइपोफिलिक होता है. मछली का जो भी फैट होता है ना उसके अंदर में ये केमिकल स्टोर्ड हो जाता है. केमिकल्स गॉट स्टोर्ड बिकॉज केमिकल्स क्या था, लायोफिलिक था, लाइपोफिलिक, लाइपो LYP, लाइपोफिलिक, फिलिक मतलब लवर. ठीक है, लाइपोफिलिक था केमिकल, तो फिशेस के फैट के सब्सटेंस में स्टोर्ड हो गया. फिश को कौन खाता है, बर्ड्स खा सकता है जो पानी के ऊपर भटकता रहता है, या ह्यूमंस खा सकता है. ठीक है,
तो अल्टीमेटली ये जो DDT का लेवल था जो पानी के अंदर में था वो किस में गया, फाइटोन में गया, फाइटोन से किस में गया, फिश के अंदर में गया, और फिश से किसके अंदर चला जाएगा, जो फिश या बर्ड उसको, जो ह्यूमन या बर्ड उसको फिश को खा रहा है उसके अंदर में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली DDT किसके अंदर में आ गया, हम लोग के अंदर में आ गया। समझ में आया। अब देखो होता क्या है, मछली सिर्फ एक फाइटोप्लैंक्टन को तो खाएगी नहीं, तो हजारों को खाएगी। तो मछली के अंदर में कुछ लेवल का क्या होगा, DDT होगा, और हजारों मछली होगा, वो हजारों मछली को कौन खाता है, एक ह्यूमन खा लेता है। तो धीरे धीरे ह्यूमन के अंदर में क्या होने लगेगा, इस DDT का या जितना भी इनऑर्गेनिक केमिकल्स है या जितना भी डेंजरस टॉक्सिक केमिकल है, हैवी मेटल्स है, नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स है, उनका लेवल क्या होगा, बढ़ने लगेगा ह्यूमंस के अंदर में, क्योंकि वो एक मछली तो ह्यूमन खाएगा नहीं। तो और ये जो केमिकल्स होते हैं ना, ब्रेन को डैमेज, ये ह्यूमंस को डैमेज करते हैं लेकिन मछली को डैमेज नहीं करते, क्योंकि मछली के फैट में स्टोर हो जाते हैं। ह्यूमंस में ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, नर्व को डैमेज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका क्वांटिटी क्या होगा, ओवर द ट्रॉपिक लेवल DDT का क्वांटिटी क्या होता है, बढ़ते रहता है। समझ में आया ये चीज, मैंने समझाया है DDT का क्या क्वांटिटी क्या बढ़ते रहेगा। देखो ये चीज देखो, ये पानी था, पानी के अंदर में DDT 0.003 पार्ट्स पर बिलियन था। इसको कौन खाया, जू प्लैंकटन। कितना आया, 0.04, स्मॉल फिश 0.5, लार्ज फिश में 2 ppm, लार्ज फिश को बर्ड्स खाया, बर्ड्स के अंदर में सबसे ज्यादा 25 ppm है। ये डायग्राम आता है तुम्हारे नीट में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन मतलब क्या हुआ, जितना भी नॉन बायोडाइग्रेडेबल सब्सटेंस था उनका मैग्निफिकेशन हो गया, उनका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा प्रेजेंट है हायर ऑर्गेनिजम्स में अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल में। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे उनका कॉन्सेंट्रेशन भी ऑर्गेनिज्म में बढ़ते जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड फिशेस डू नॉट डाई, व्हाई, बिकॉज दे आर स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यूज ऑफ फिशेस, एंड दैट इज वाई वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो स्प्लिट आउट भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जितना भी DDT हम लोग पानी में डालते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द फूड चेन, एंड एज अ रिजल्ट दे विल रीच टू द टॉप कंज्यूमर्स, एंड बिकॉज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स जितना भी इंसान है वो मरते जाएगा, इंसान बीमार हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DDT किसमें मैक्सिमम होता है, ये पूछता है, बर्ड्स में या मैमल्स में होता है। और देखो ये जो एक साइंटिस्ट था जिसका तुम्हें नाम याद करना है, इसका नाम है रिकाल कार्सन। ये रिकाल कार्सन जो साइंटिस्ट था, इन्होंने अपनी बुक लिखी, बुक का नाम था साइलेंट स्प्रिंग। ये भी पूछता है साइलेंट, अपनी किताब में इन्होंने DDT का साइड इफेक्ट या पेस्टिसाइड का साइड इफेक्ट बर्ड्स पर देखा, क्योंकि देखो DDT हम लोग पानी में डाले लेकिन बर्ड्स पे डैमेज हो रहा है, तो इन्होंने अपनी किताब में लिखी है रिकाल कार्सन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये नीट में याद करना है साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, कैडमियम से क्या होता है, ह्यूमन में एक बीमारी होती है, उसका नाम है इटाई इटाई। इटाई इटाई को बोलते हैं हम लोग आउच आउच डिजीज। क्या बोलते हैं, आउच आउच डिजीज। कैडमियम से इटाई इटाई होता है। आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट, मतलब जो फुट होती है वो क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। ब्लैक फुट पूछता है किससे होता है, आर्सेनिक से होता है। लेड से क्या होता है, प्लम्बिज्म होता है, प्लम्बिज्म। ठीक है, समझ में आया, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन। मैक्सिमम DDT कॉन्सेंट्रेशन किसमें देखने को मिलेगा, तुमको 3 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है क्रैब, दूसरा है ईल, और तीसरा है तुम्हारा सीगल। बताओ, सीगल में मिलेगा। ठीक है, बिकॉज सीगल क्या एक बर्ड है, सफेद बत्तख की तरह दिखता है बर्ड। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, मैंने समझाया क्या, जितना भी तुम्हारा फर्टिलाइजर या डिटर्जेंट होता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फोनेट, ये जितना भी न्यूट्रिएंट इनऑर्गेनिक केमिकल वो यूट्रोफिकेशन करता है। समझ में आया, यूट्रोफिकेशन। लेकिन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, पेस्टिसाइड होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, टॉक्सिक केमिकल होता है, वो क्या करता है, बायोमैग्निफिकेशन करता है। समझ में आया। मरकरी से क्या होता है, मीनामाटा डिजीज होता है, एक बार ये याद रखना, मीनामाटा। एक्चुअली क्या होता है, वो मछलियों में ना मरकरी भर गया था, इंसान मछली को खा गया, इंसान के अंदर मरकरी आ गया, इंसान मरने लगा, बहुत इंसान मर गया मीनामाटा डिजीज की वजह से। तो हेंस बायोमैग्निफिकेशन इज कंप्लीटेड। समझ में आया, कुछ उड़ा तो नहीं है। In the next class we will discuss about the sewage treatment, जो तुम्हारे माइक्रोस में तुम बोल रही थी सीवेज बनाने के लिए। Next class we will do sewage treatment, and we will also do the remaining portion of air pollution and some remaining things। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। कंसिडर टुडे, और भी बहुत कुछ बचा, 2 लेक्चर बचा इसमें, 2 lectures on pollution chapter। तो we will study all those things। तो घबराना नहीं है, अभी आज का और कल लास्ट टाइम जो पढ़ा है उसको एक लेक्चर मानना है तुमको। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।